Hello my dear children, welcome back to my class. This is Shivani, your English teacher. Students, the topic that I have come up with today is letter writing, and this time in half yearly examination you will be having letter writing in your syllabus. Earlier we studied how to write notice, and this time we will learn how to write letter. So yes, let's start today's video. So the very first question is, why do we write letter and what actually a letter is? A letter is a written message that can be handwritten or printed on paper. It is usually sent to the recipient via mail or post in an envelope. Although this is not a requirement as such, any such message that is transferred via post is a letter, a written conversation between two parties. So, what is letter? A letter is a written message. ठीक है, ये एक written message होता है जो दो parties एक दूसरे से exchange करती हैं. दूसरी चीज़, it can be handwritten as well as it can be printed. आप ये printed भी भेज सकते हो और आप ये handwritten भी भेज सकते हो. ऐसा कोई एज सच कंपल्शन नहीं है कि वो प्रिंटेड होना चाहिए या हैंड रिटन होना चाहिए. नाउ फ्यू थिंग्स टू कीप इन माइंड दैट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी जो प्रिंटेड मैसेज है वही लेटर हो या आपने जो हैंड रिटन भेजा है वही लेटर हो. ठीक है, सो ऐसा कोई भी मैसेज जो आप पोस्ट के थ्रू एक दूसरे से एक्सचेंज करते हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं लेटर. नाउ द वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर आर देयर एंड व्हाई डू वी राइट लेटर. सो स्टूडेंट्स, nowadays emails and texts are other such forms, that have become normal for communication. The art of letter writing has taken a back seat. अब जो उसका लेटर राइटिंग का जो यूज़ है वो काफ़ी कम होता जा रहा है, बिकॉज नाउ डेज मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ email and text and chatting, okay, but still even today a lot of our communications and especially the formal kind of conversations are done via letters. क्योंकि आपको अगर फॉर्मल किसी को लेटर लिखना है तो आप उसको फॉर्मली चैट नहीं कर सकते. येस, ईमेल इज़ एन ऑप्शन बट ऑल्सो लेटर राइटिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. Okay, so whether it is a covered letter for a job or the bank sending you a reminder or a college acceptance letter are still an important mode of communication, which is why it is important that we know how to write letter and what are the rules and regulations to write letter. So yes, come to the types of letters. Let us first understand that there are broadly two types of letter, namely formal letters and informal letters. Okay, so we need to know that there are broadly only two types of letters. First is formal letter and another is informal, जिसे आप हिंदी में औपचारिक और अनौपचारिक पत्र कहते हैं. But then there are also a few type of letters based on their contents, formalities and the purpose of letter writing, etc. ठीक है, कुछ और भी टाइप्स के लेटर होते हैं जैसे अपॉलॉजी लेटर, बिजनेस लेटर. ओके, ये सारे लेटर्स बेस्ड होते हैं किसी एक कंटेंट या फॉर्मेलिटीज़ पे. बट मोस्ट ऑफ दीज लेटर्स ऑल्सो कम अंडर फॉर्मल लेटर. ये सारे भी फॉर्मल लेटर के अंदर ही आते हैं. सो हम जल्दी से जान लेते हैं कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर होता क्या है और डिफरेंस क्या है. Formal letter. These letters follow a certain pattern and formality. They are strictly kept professional in nature and directly address the issues concerned. Any type of business letter or letter to the authorities falls within this given category. So जो formal letter हमारा होता है उसका एक अपना
निश्चित सर्टेन पैटर्न और फॉर्मेलिटी होती है. ओके, मीन्स देयर इज़ अ सर्टेन रूल टू राइट फॉर्मल लेटर. उसके कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ एक फिक्स रूल या रेगुलेशंस होते हैं कि हमें फॉर्मल लेटर ऐसे ऐसे लिखना है. ठीक है, एंड दे आर स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल इन नेचर. मीन्स देयर इज़ नो hi, hello, how are you? These kinds of chats are never, in the formal letter. They are very professional in their tone. They are very professional in their nature. And we write formal letter in a very, to the point manner. कोई उसमें इधर उधर की बातें नहीं होती है. डायरेक्ट आप जिस इशू की वजह से लिख रहे हो, जो भी प्रॉब्लम्स की वजह से लिख रहे हो, डायरेक्ट उस प्रॉब्लम के बारे में आप बात करते हो. ठीक है, सो एनी टाइप ऑफ बिजनेस लेटर जो होते हैं, एनी टाइप ऑफ लेटर्स जो हम किसी अथॉरिटीज़ को लिखते हैं, ईदर इट्स योर स्कूल अथॉरिटी और इट्स योर बिजनेस अथॉरिटी, ठीक है, म्यूनसिपल पार्टी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी को जब हम लेटर लिखते हैं तो वो सारे जो लेटर्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, फॉर्मल लेटर में. ठीक है, औपचारिक पत्र में. नेक्स्ट इज इनफॉर्मल लेटर. दीज आर पर्सनल लेटर्स. दे नीड नॉट टू फॉलो एनी सेटअप पैटर्न्स और अदर मीन्स पालन करना टू एनी फॉर्मेलिटीज़. दे कंटेन पर्सनल इंफॉर्मेशंस और आर रिटन conversations. Informal letters are generally written to friends, acquaintances, relatives, etc. Okay, so फॉर्मल लेटर अपने टोन में जितना ही फॉर्मल होता है, फॉर्मल वर्ड से ही हमें समझ में आ जाता है. इनफॉर्मल लेटर उसका जस्ट अपोजिट होता है. इनफॉर्मल लेटर्स आपके होते हैं पर्सनल लेटर्स दैट यू राइट टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिलीज़, ठीक है, या आपके कोई जानने पहचानने वाले को आप लिखते हो. इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए आपको फॉर्मल लेटर की तरह कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न और रूल को फॉलो नहीं करना पड़ता है. ठीक, यू राइट इनफॉर्मल लेटर इन एन ईजी लैंग्वेज. ओके, आप ईजी लैंग्वेज में लिखते हो. ऑल्दो यू टेक केयर ऑफ ग्रामर, आप ग्रामर का ध्यान रखते हो. आप कुछ चीज़ें हैं जिनको आप तब भी फॉलो करते हो कि नाम कहाँ लिखना है, बॉडी ऑफ द लेटर कहाँ होगी, डेट कहाँ लिखना है, ऑल्दो यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, बट कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जैसे कि हमारा फॉर्मल लेटर में होता है. ठीक है, सो और इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं, बिकॉज दे आर पर्सनल लेटर्स, ओके, सो वी ऑल्सो पुट सम पर्सनल इंफॉर्मेशन in informal letter, which we generally don't do in formal letters. So today we will only cover up the portion of formal letter, and in another video we will continue with informal letters. Okay, so let's study about formal letters. A formal letter is one in a formal and ceremonious language and follow a certain format. Such letters are written for official purpose to authorities, dignitaries, colleagues, seniors, etc., and not to personal contacts, friends or family. So this thing I have already told you about कि ये आप किसी अथॉरिटी को लिखते हो, डिग्नेटरीज़ को लिखते हो, कलीग्स को लिखते हो या सीनियर्स को लिखते हो. ये आप अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स लाइक फ्रेंड्स और फैमिली के लिए यूज़ नहीं कर सकते. A number of conventions must be adhered to while drafting formal लेटर्स. आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं विच यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर. सो लेट अस टेक अ लुक एट द सैम्पल फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर. सो हियर इज द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर. सेंडर्स एड्रेस. The sender's address means the person who is sending the letter. Suppose if I want to write a letter to the management of my school, okay, so I am the sender. Okay, so firstly I'll write my address there. The sender's address is usually put on the top left hand corner of the page. The address should be complete and accurate in case the recipient of the letter wishes to get in touch with the sender for the further communication. ठीक है, so सबसे पहले आपका जो पेज पे टॉप पे आता है लेफ्ट हैंड साइड पे, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि वी विल राइट ईच एंड एवरीथिंग
इन द लेफ्ट साइड. ओके, पहले का जो फॉर्मेट होता था उसमें ये फॉर्मेट होता था कि हम जो सेंडर का एड्रेस लिखते थे दैट वी यूज टू राइट इन द राइट साइड, बट नाउ द फॉर्मेट हैज़ कम्प्लीटली चेंज एंड नाउ इन फॉर्मल लेटर वी राइट ईच एंड एवरीथिंग एट द राइट एट द लेफ्ट साइड. Okay, so we're at the top of the letter on left side we will write sender's address. और जो आपका एड्रेस होगा दैट शुड बी वेरी एक्यूरेट एंड वेरी कंप्लीट. ठीक है, सो दैट अगर जैसे हम लेटर भेज रहे हैं वो इंसान हमें कांटेक्ट करना चाहे या हमें रिवर्ट करना चाहे, रिप्लाई करना चाहे, हमसे कम्युनिकेट करना चाहे, सो हमारा जो एड्रेस है वो इतना एग्जैक्ट होना चाहिए कि अगर वो चाहे तो हमसे कभी भी कम्युनिकेशन कर सके. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज सेंडर्स एड्रेस. नेक्स्ट थिंग इज डेट. द सेंडर्स एड्रेस इज फॉलोड बाय द डेट जस्ट बिलो इट, दैट इज ऑन द इट्स लेफ्ट. बेटा इट्स लेफ्ट. ओके, left side of the page. This is the date on which the letter is being written. It is important in formal letters as they are often kept on record. So जो आपका सेंडर्स एड्रेस है उसके बाद हम लिखेंगे डेट, वो भी जस्ट नीचे लिखेगा सेंडर्स एड्रेस के. ये जो डेट है ये हम उस दिन की डेट डालेंगे जिस दिन हम लेटर लिख रहे होंगे. ठीक है, या जिस दिन हमने लेटर लिखा है. सपोज़ अगर मैंने आज लेटर लिखा है तो मैं आज की डेट डालूंगी 8 सितंबर 2020. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ ऑफन केप्ट एज अ रिकॉर्ड. हो सकता है कि जैसे हम लेटर भेज रहे हैं वो एज अ रिकॉर्ड हमारी जो डेट है उसको नोट कर ले. ठीक है, आफ्टर दैट वी विल राइट रिसीवर्स एड्रेस. After leaving some space, we print or we write the receiver's address on the left side of the page. Whether to write 2 above the address depends on the writer's preference. ठीक है, डेट के जस्ट बाद हम लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस जिसे हम लेटर भेज रहे हैं, और टू द लिखना हमारी चॉइस है. अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम टू लिख सकते हैं, टू हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, या हम डायरेक्ट हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया भी लिख सकते हैं. मेक श्योर यू राइट द ऑफिशियल टाइटल, नेम, पोजीशन एटसेट्रा ऑफ द रिसीवर एज द फर्स्ट लाइन ऑफ द एड्रेस. ठीक है, सो जो भी आप रिसीवर का एड्रेस लिखते हो उसमें जो उसकी पोजीशन है, टाइटल है या ऑफिशियल टाइटल है, उसका नाम आपको हाईलाइट करके मेंशन करना है क्योंकि सबसे पहले नज़र उसी पे जाती है. ठीक है, आफ्टर दैट ग्रीटिंग विल कम. दिस इज़ वेयर यू ग्रीट द पर्सन यू आर एड्रेसिंग द लेटर टू. बियर इन माइंड मीन्स कीप इन माइंड दैट इट इज़ अ फॉर्मल लेटर, सो द ग्रीटिंग वाज टू बी रिस्पेक्टफुल एंड नॉट टू पर्सनल. ठीक है, मतलब क्या है, ये वो पोर्शन होता है जहाँ पे आपको जिस इंसान को आप लेटर लिख रहे हो उसे ग्रीट करना होता है, लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारी ग्रीटिंग है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होनी चाहिए, एक रिस्पेक्टेड टाइप की होनी चाहिए और थोड़ी फॉर्मल होनी चाहिए. ठीक है, यू जस्ट कांट गो लाइक हाय हेलो हाउ आर यू, वाई डू यू वॉन्ट टू नो ऑल दिस. आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हो और आपको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट शुड बी क्वाइट फॉर्मल इन द टोन. ओके, द जनरल ग्रीटिंग शुड बी in formal letters are sir or madam. If you know the name of the person, you can also write Mr. XYZ or Mr. AB, Miss ABC. But remember, you cannot address them only by their first name. It must be full name or only their last name. ठीक है, so जो greeting है पहले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप जो अपना लेटर लिख रहे हैं उसमें सर और मैडम यूज़ कीजिए. बट स्टिल अगर आपको नाम पता है उनका, ठीक है, suppose you know the name of your principal or you know the name of your senior, so you just can't go like आप उनका नाम लिख दो. ठीक है, you have to write their complete name or you can just write their title like Mr. Fernandez. Okay, you just can't go like ki hi Fernandez because this is not a personal letter, this is a formal letter. After that, subject. After the greeting comes the subject of the letter. In the center of the line, write subject followed by a colon. Then we sum up the purpose of writing the letter in one line. This helps the receiver focus on the subject of the letter in one glance. Okay, now उसके greeting के बाद हम लिखेंगे subject. ठीक है, अच्छा, सब्जेक्ट जो होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जैसे ही किसी को आप लेटर भेजते हो उसका जो सबसे पहली नज़र है, सबसे पहला जो ग्लांस है वो जाता है सब्जेक्ट पे. ठीक है, इस पे हम सम अप करके ये लिखते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल पर्पस ऑफ आवर लेटर. ठीक है, एक लाइन में हम लिख देते हैं कि ये हमारा पर्पस है.
ठीक है, रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन वर्क या रिलेटेड टू नॉइस पोल्यूशन, रिलेटेड टू यूज़ ऑफ डीजे, ठीक है। इससे ये पता चल जाता है रिसीवर को कि हमारा लेटर किस चीज़ से रिलेटेड है, किस इशू से रिलेटेड है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस एनी टॉपिक। नेक्स्ट इज बॉडी ऑफ द लेटर. So the main content of the letter will come under this portion. This is the main content of the letter. It is divided into 3 paras or 2 paras, means 2 or 3 paragraphs. If the letter is briefer, the purpose of the letter should be made clear in the first paragraph itself. ठीक है, मतलब आपका जो लेटर है वो 2 या 3 पैराग्राफ का हो सकता है, लेकिन आपका जो मोटिव है, जो पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर है, दैट शुड बी वेरी क्लियर इन द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ. आप फर्स्ट पैराग्राफ में ही क्लियर कर दो कि आपने लेटर लिखा क्यों है. द टोन ऑफ द कंटेंट शुड बी फॉर्मल, डू नॉट यूज़ एनी फ्लॉरी लैंग्वेज. ओके, आपका जो टोन है वो सीरियस होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फ्लॉरी नहीं होना चाहिए. किसी को ऐसा नहीं कि आप बटरिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप बहुत ही इनफॉर्मल हो रहे हो, बहुत फ्रेंडली टॉक नहीं करनी है आपको, ठीक है. अनदर पॉइंट टू कीप इन माइंड इज़ दैट लेटर शुड बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट. आपको सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी है, इधर उधर की कोई चीज़ नहीं लिखनी है. आप जिस इशू से, जिस कॉज के बारे में लेटर लिख रहे हो, उसको टू द पॉइंट बात करो. And always be respectful and considerate in your language, no matter the subject of your letter. आपका सब्जेक्ट क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता. Always be very very respectful and very very formal in your language. After that, closing of the letter. ठीक है, at the end of your letter we write a complimentary losing. The words yours faithfully or yours sincerely are printed on the I'm sorry, this is again left. Okay, left side of the left side of the paper. Generally we use the later if the writer knows the name of the person. ठीक है, सो ये क्लोजिंग जो होती है आपकी, वो आप योर सिंसियरली या योर फेथफुली से लिख सकते हो. योर सिंसियरली जनरली आप तब लिखते हो जब जिसको आप लेटर भेज रहे हो उसे आप जानते हो. अदरवाइज यू कैन राइट बोथ. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन योर्स फेथफुली एंड योर सिंसियरली. देन सिग्नेचर कम्स हियर. फाइनली यू साइन योर नेम, ठीक है, एंड देन यू राइट योर नेम्स इन द ब्लॉक लेटर्स बीनीथ द सिग्नेचर. फर्स्टली यू विल सिग्नेचर, आप अपने नाम का सिग्नेचर करोगे और उसके नीचे आप बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में लिखोगे अपना नाम. दिस इज हाउ द रेसिपिएंट विल नो हु इज सेंडिंग द लेटर. सो दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ letter, and to understand it in more clear manner, let's solve a question. So here is the question. Write a letter to the editor of daily newspaper complaining about the construction work on your road in the middle of monsoon season, causing inconveniences to the people of your locality. क्वेश्चन क्या है? यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर. आपके डेली न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको लेटर लिखना है. आपको पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये फॉर्मल लेटर है, क्योंकि आप मम्मी पापा भाई बहन या दोस्त को नहीं लिख रहे हो, ठीक है. लिखना किस चीज़ से रिलेटेड है? अबाउट द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन योर रोड इन द मिडिल ऑफ मानसून सीज़न. भाई मानसून का सीज़न है, बारिश का टाइम है, और आपकी जो एरिया है उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत इनकन्वीनियंस होता है आने जाने में, ठीक है. सो आप उसके कंप्लेन करने के बारे में लिखना है. So the very first thing that we need to write is sender's address. ठीक है, sender's address सबसे पहले हमने लिख दिया. This whole portion is the sender's address. Sender's address के बाद हमें क्या लिखना है? The date on which we have written the letter, that is 11th September 2020. After that हमें क्या लिखना है? Receiver's address. ठीक है, to लगाना हमारी choice है. I wanted to write, so I have written. आपकी इच्छा नहीं है, आप मत लगाओ. The editor-in-chief, Hindustan Times, Main Street, Mumbai. Okay. After that, you will greet the person. Always remember that there should be sir or madam. Okay. Or you can also write name, but name should be very complete and formal. After that, subject. सब्जेक्ट एक लाइन में हमें लिखना है, छोटे से छोटा और हाईलाइट रहना चाहिए. कंस्ट्रक्शन वर्क इन आवर लोकेलिटी ड्यूरिंग मानसून सीजन कॉजिंग अस डिफिकल्टीज. एंड दिस इज द मेन बॉडी ऑफ योर लेटर. लेट अस रीड दिस.
Through the medium of your esteemed and respectful daily, I wish to inform the municipal authorities of the difficulties the residents of my localities are facing due to construction and repair work currently happening in our area. Monsoon season has started a few days ago and is compounding our problems. So students, you can see कि मैंने अपनी प्रॉब्लम जो है उसको फर्स्ट पैराग्राफ में ही क्लियर कर दी है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने इधर उधर की कोई बात की. ऑल्दो माई लेटर इज ऑफ 3 पैराग्राफ बट स्टिल आई हैव एक्सप्लेन माई प्रॉब्लम वेल इनफ इन द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ. और आपको भी यही करना है. आपकी जो प्रॉब्लम है, जिस मुद्दे पे आप लिख रहे हो लेटर, वो फर्स्ट पैराग्राफ में ही आप क्लियर कर दो. ठीक है, अब नीचे उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं. द रिपेयर वर्क हैज़ बीन ongoing for 5 weeks now and is falling way behind schedule. मतलब मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो 5 हफ्ते से चल रहा है और जो स्केड्यूल था उससे काफ़ी पीछे चल रहा है. एंड नाउ विद द करेंट वेदर कंडीशंस वी आर हैविंग परसिस्टेंट प्रॉब्लम ऑफ वाटर लोडिंग एंड फ्लडिंग इन आवर एरिया. और अब जो करंट सिचुएशन है उसकी वजह से जो पानी है वो इकट्ठा हो जा रहा है और जो हमारा एरिया है उसमें फ्लडिंग हो रही है, बाढ़ आ रही है. अनदर वरी इज़ अबाउट द एक्सीडेंट्स दैट मे अकर ड्यू टू द डेब्रीज मीन्स कचरा लाइंग अराउंड द रोड. ठीक है, मतलब एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं क्योंकि जो रोड है उसमें जगह जगह कचरे डेब्री इकट्ठे हैं. Diseases caused due to water lodging are another one of our concerns. So मेरे पास बहुत सारी इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे रीजंस हैं लेटर लिखने का. पहली चीज़ क्या इशू, मतलब आप किसी भी चीज़ के बारे में लिख रहे हो ना तो आप ये चीज़ क्लियर करो कि उससे क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है. सपोज यू आर राइटिंग अ लेटर टू समबडी फॉर नॉइस पोल्यूशन ड्यू टू डीजे, तो आप ये चीज़ क्लियर करो कि डीजे की वजह से अगर 11 बजे के बाद डीजे चलता है तो मुझे ये प्रॉब्लम है, हमारे घर में बच्चे हैं वो सो नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, इससे नॉइस पोल्यूशन होता है. ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा कि आपको उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है. डोंट जस्ट गो एंड राइट कि आई वॉन्ट टू कंप्लेन अबाउट दिस. अरे वाई डू यू वॉन्ट टू कंप्लेन अगेंस्ट इट, मेक दैट क्लियर इन योर लेटर. फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने ये बताया कि मेरी प्रॉब्लम क्या है. सेकंड पैराग्राफ में मैंने ये बताया कि वो प्रॉब्लम मुझे क्यों है, मैं लेटर क्यों लिख रही हूँ. थर्ड पैराग्राफ में ये बताऊँगी कि मैं चाहती क्या हूँ आपसे. Therefore, I wish to draw the attention of the concerned authorities with the help of your newspaper. Hopefully, you will be able to help us in drawing the attention and resolving this matter at the earliest. So, आप देख सकते हो मेरा जो टोन है बात करने का वो पूरे में फॉर्मल था. मैंने कहीं भी इधर उधर हाय हेलो ऐसी कोई भी बात नहीं की. ठीक है, अगेन द टोन वॉज वेरी सीरियस. थैंकिंग यू, दिस इज़ योर क्लोजिंग. थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली. ओके, योर्स सिंसियरली. यू विल राइट हियर योर्स सिंसियरली, नीचे आपका सिग्नेचर. ठीक है, एंड सबसे नीचे आप क्या लिखोगे, मिस्टर XYZ, आपका जो भी नाम है उसको इन बोल्ड लेटर्स. सो आई विल सेंड यू one letter writing, one question along with this video so that you can practice it at home. And in the next video I will be explaining you how to write informal letters. Okay, so till then take care and stay safe.